till I come. Till I come. Change it and say. Till I come. We are very privileged to have you here. So today we are representing our Ashok House topic predicting your digital world. So you might be aware that every person in this generation, starting from a toddler to an old age man, everybody is using technology and everybody is using mobile phones and laptops. शुभ संध्या तिथि बोले जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इस आधुनिक युग में हम लोग कंप्यूटर तकनीक से अछूते ही नहीं रह सकते। जिस वेग से साइबर दुनिया बढ़ती जा रही है उसी वेग से साइबर खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। उससे सुरक्षा हमें जरूरी हो गई। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उन सब के बिना हमारा जीवन अपूर्ण है। इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए हमें साइबर सुरक्षा का उपयोग करना चाहिए। As you might be well aware that the BM organized All India Conference with DGPs of our country to look forward for the Vision Bharat on 1st December 2023. He also mentioned that the agenda of cyber secured Bharat won't be achieved until and unless our generation citizens of our country won't be aware about the cyber security. So as you can see that our board is divided into two parts. One is located as cyber threats, which may include ransomware, phishing, denial of service, SQL injection, malware and manipulative attack. And the other part is cyber security. ये बात तो पूरा करते रैंसमवेयर के बारे में इसमें अगर इस शब्द की संधि विच्छेद ही करें तो रैंसम का मतलब होता है फिरौती। इसमें हमारी निजी जानकारी को कोई बाहरी व्यक्ति ले लेता है, फिर उसके बदले में हमसे पैसों की मांग पैसे न पूरे करने पर उस डाटा को बेच सकता है, उसी कालाबाजारी भी कर सकता है। ये शब्द बताते हैं इसमें भी यही होता है कि जैसे कोई मछली समंदर में आने के लालच में जाल फंस जाती है, उसी तरीके से हमारे मोबाइल में, फ़ोन में, लैपटॉप में किसी में भी बाहरी ईमेल आती है जिसमें कोई भी वायरस इंसर्ट हो सकता है या मालवेयर हो सकता है जो हमें लुभावने मैसेज देता है। इसके लालच में हम लोग अपनी जानकारी दे देते हैं। On completing this, as you can see, this umbrella of cyber security is a metaphor, like how umbrella secure us from rain. So this umbrella of cyber security protects us from cyber threats in the digital world. The first one I would like to explain is strong passwords. As you can see that strong passwords are very necessary for our devices. Like one must always use alphanumeric passwords in their devices, which should include numerical values, special characters, alphabets, small and capital. The second must be two-factor authentication. As you know that women of our country are very fond of clicking pictures and posting them online. So they should always use two-factor authentication in their devices or in their social networking sites. So their pictures should not be morphed or edited and used in a negative manner. इसमें होता है कि हम लोग अपने डाटा की एक दूसरी कॉपी बनाकर रखते हैं, उसको ये ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मीडिया में, जैसे कि ऑनलाइन मीडिया की बात करें तो उसमें वन ड्राइव या गूगल ड्राइव में रखकर सेव रखते हैं या फिर हार्ड ड्राइव में ऑफलाइन जरिए सेव रखते हैं। अब यदि हमारे डाटा को किसी बाहरी डिवाइस ने लॉक कर दिया है, मार्केट ने लॉक कर दिया है या फिर किसी कारण से वो डिलीट हो गया तो हम लोग उस डाटा को डाटा बैकअप से वापस पा सकते हैं। और मैं अपनी इसके तब मैं यही कहूँगा कि भारत देश तब तक at the end I would like to explain that be aware of phishing. As he explained phishing there, so the model of the code also tells us that one must always keep their social networking sites locked out. So to protect our any information, any private
conclusion, I would like to say that one must always be aware of cyber security and the measures to be taken, because if the citizens of our country or the child of our country would be knowledgeable about this, so they can protect their future as well as their present. And it takes 20 years to build a reputation or a character, but it takes 20 seconds of any cyber threat to destroy. तब मैं इनकी बात को बढ़ाते हुए यही बोलूँगा कि भारत देश की तरक्की में तब तक बाधा आती रहेगी जब तक भारत देश साइबर सुरक्षित नहीं है। यदि हमारा निजी डाटा किसी और के पास रहेगा तो उसका गलत इस्तेमाल जरूर करेगा। तो इसके लिए हमें उसकी साइबर सुरक्षा करनी चाहिए। और जब तक भारत का बच्चे reflects the evolution of justice across cultures, from Western symbolized representation to Indian traditional and spiritual perspectives. The figure of Lady Justice is a universal representation of fairness, equity and impartiality in legal systems. In Indian culture, the concept of Lady Justice, is deeply intertwined with spirituality, dharma and karma. Indian justice emphasizes on dharma, righteousness, and satya, truth as its foundation. These values transcend material evidence and focus on moral and ethical conduct. The West formalized justice into a structural legal system with symbolic figures like Lady Justice, emphasizing rationality and evidence, whereas Indian judiciary is traditionally based on the spiritual principles of karma and moral duty. This recent transition in Indian judiciary serves as the model that Indian judiciary works on dharma and karma. Thank you. सदियों से खड़ी वह न्याय का स्वरूप, निष्पक्षता से सजी वह मूरत आंखों पर पट्टी सबको यह सिखाए, नजर का भेद न्याय में न है। पर भारत ने दिया एक नया विचार, धर्म, संस्कृति और संविधान का आधार। संविधान संग बढ़ाए देश का सम्मान, न्याय की देवी सच्चाई का वरदान। लेडी जस्टिस का वह स्वरूप रोमन तथा यूनानी परंपराओं से प्रेरित है, जबकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म, सत्य तथा कर्म को ही न्याय का आधार माना गया है। लेडी जस्टिस से न्याय की देवी तक की यात्रा अनेक संस्कृतियों तथा परंपराओं की धरोहरों से होकर आधुनिक न्याय प्रणाली तक पहुंची है, जो न्याय की सार्वभौमिकता तथा सत्य और नैतिकता के महत्व को दर्शाती है तथा न्यायिक सुधारों के स्वर्णिम युग के आरंभ की प्रासंगिकता को परिपूर्ण है। हमारे देश की शक्ति और सामर्थ्य आत्मनिर्भर भारत की नींव पर खड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री का सपना आत्मनिर्भर भारत को साकार करना, हमारे देश के युवाओं की ताकत आत्मनिर्भर भारत की राह पर बढ़ना। Good evening, sir. Today we, on behalf of our Tagore House, will be introducing you to the topic of our board, that is Atmanirbhar Bharat or self-reliant India. Now, the question that arises here is, what does self-reliance means to us? Is it about doing everything on our own, or is it about being strong enough to stand tall in a globalized world? When our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, introduced the vision of Atmanirbhar Bharat in May 2020, it was a call to action that urged us to rethink our priorities and to recognize India's potential. This mission is not just about economic independence, it's about empowering every Indian, from farmer in a field to innovator in a lab. The key pillars of self-reliant India, economy, infrastructure, by system, demography and demand are interconnected, forming the foundation of self-reliant India. The concept of Atmanirbhar
Atmanirbhar Bharat was originally given by Mahatma Gandhi during the Indian independence struggle against Britishers. Swadeshi movement and Dandi March were the impact of his vision of Atmanirbhar Bharat. This mission aims to make its country and its citizens self-reliant in all senses and to revive all the sectors of economy with the rise in fiscal stimuli. आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने पैरों पर खड़े होना, अर्थात अपनी ज़रूरतों को स्वयं पूरा करना। ये बस एक शब्द ही नहीं बल्कि अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 मई 2020 में एक संकट को अवसर में परिवर्तित करने की सोच रखकर आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को सभी मायनों में स्वतंत्र तथा सबल बनाना है, अर्थात आत्मनिर्भरता ही हमारे देश की तरक्की की कुंजी है। महात्मा गांधी जी ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लिए खादी आंदोलन की शुरुआत की तथा हमें बताया कि खादी के उपयोग द्वारा हम विदेशी वस्तुओं पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। उनके यही विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। जय ये वहाँ दिलवाएं कि यहीं आपके हाउस में बनाया? सर उनको बेटा इधर देखिए बेटा फूल ओपन नहीं कर रहा, ओपन करो मेहनत तो देखी जाए। अरे वाह, सर फाइन आर्ट में जाना मानस रिमूव द पेपर। सो आने के पहले बना दूँ। यस सर, पेपर हटा लो, पेपर हटा लो। हाँ रिबन भी हटा लो। यस सर इट इज अ हैंड स्केच बाय हिम ओनली। नेशनल में भी गई है पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग में यूपी यूके को नेशनल लेवल पर उसने यूपी उत्तराखंड रीजन को रिप्रेजेंट किया था। हाँ उधर बैठी है, आज उसको प्राइज मिलेगा। दिलवाएंगे उससे। आचार्य जी और सभा में उपस्थित मुझे ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो न केवल हमारे समाज का आधार है बल्कि हमारे विकास की दिशा को भी तय करता है। नारी तू नैरैणी है, अर्थात नारी ही नैरैणी का स्वरूप है, तू सर्वोपरि है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। लेकिन क्या आज हमारे इस समाज में अब ऐसा हो रहा है? नारी हर क्षेत्र पर बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही है और जब जब इन नारियों को इनकी क्षमता को सिद्ध करने का अवसर दिया गया, इन्होंने अपनी क्षमता को सिद्ध किया। फिर चाहे वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपना जीवन दान कर दिया, और चाहे वह कल्पना चावला हो, जिन्होंने अंतरिक्ष में जा करके अपने देश का नाम रोशन किया। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगा कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की भान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। धन्यवाद। Killing her is a heinous act. You will pay its price in fact. Women faces significant violence and discriminations. According to the National Crime Records Bureau, a crime against a woman is committed every 3 minutes in India. Although we used to consider them as incarnation of goddess Shakti, just like in Vedic period, women enjoyed a higher status and were provided more rights and freedom. Defined by no man, you are your own story, blazing through the world, turning history into history. And when they hear you, tell you about all the things you can do, you smile and tell them, I am both for and no. What is our topic? Protecting your digital world. So you might be aware that in this era of 21st century, starting from a toddler to an old age,
everybody have mobile phones and everybody is socially very active. So there are some of the cyber threats and some of the cyber security. As you know that everything has its own pros and cons as well. So we have located some of the cyber threats and some of cyber security that are majorly popular in this country. शुभ संध्या तिथि महोदय, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इस आधुनिक युग में हम लोग कंप्यूटर तकनीक से अछूते ही नहीं रह सकते हैं। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बिना हमारा जीवन अपूर्ण ही है। और जिस वेग से साइबर दुनिया बढ़ती जा रही है, उसी वेग से साइबर क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। और यहीं पर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि हमारी खुद की सुरक्षा केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए भी निर्भर करती है। इसमें देख सकते हैं इस बोर्ड को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से पहला भाग साइबर थ्रेट्स है, साइबर खतरा के बारे में। इसमें अगर पहला शब्द देखें तो अगर फिशिंग है, इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे समंदर में एक मछली होती है जो दाने के लालच में अपना जीवन त्याग देती है। इसी तरीके से हमारे मोबाइल में अगर कोई बाहरी ईमेल आया या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन आया जिसमें वायरस या मालवेयर है, तो उसको हम लोगों ने क्लिक कर लिया, उसमें हमारी निजी जानकारी किसी और के पास चली जाएगी। इससे हमें वो नुकसान हो सकता है और साथ ही हमारी कोई भी जानकारी बाहर बेची जा सकती है। इसकी कालाबाजारी भी होती है। As you might be well aware that on 1st December 2024, the PM organized 59th All India Conference with all the DGPs of our country to look forward for the Vision Bharat. As you might be aware that if the world is not cyberly secure, then it can be harmful for the future as well as the present of our country. So as we told you about some of the cyber threats, I would like to tell you about the man in the middle, malware, SQL injection, denial of service, ransomware. These are the majorly and most popular cyber threats happening in the country. So as you can see, we have located an umbrella, like how it protects us from rain. So this umbrella of cyber security protects our digital world from cyber threats. I would like to tell you about strong passwords. One must always use alphanumeric passwords in their email IDs and etc. for which include special characters, capital and small alphabets as well as numerical values. Two-factor authentication. You might be well aware that women in our country are very fond of taking pictures and posting them online in social networking platforms. So it just basically means that if the social networking site will be purely secured, like Z plus security would be there, then the information, getting information in a negative use will be reduced. इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा आपको एंटीवायरस के बारे में। इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये हमारे डिवाइस में अगर कोई वायरस आ गया है, मालवेयर आ गया है, उससे हमारी रक्षा करता है। अगर जैसे इसका उदाहरण लें, जैसे हम बीमार होने पर एंटीबायोटिक्स खाते हैं, वैसे ही एंटीवायरस भी यही करता है कि वो हमारे डिवाइस को बचाता है किसी चीज़ से, मालवेयर से, उससे हानि होने से पहले ही बचाता है पहले तो। और इसके अतिरिक्त मैं बताता हूँ आपको, किसी भी वेबसाइट में अगर हम लोग जाते हैं तो उसमें URL होता है, उसका IP एड्रेस होता है। उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें HTTPS होता है। अगर HTTPS ना हो तो वो हैक भी हो सकती है, फिर S का मतलब इसमें सिक्योर होता है। और इसमें हैकर ये इस्तेमाल करते हैं तो HTTPS की जगह HTTP रखते हैं, S हटा देते हैं। S का मतलब क्योंकि सिक्योर हुआ, क्योंकि ये उन्होंने URL से छेड़छाड़ की, उसमें हैक होने के आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। At the end, I would like to conclude my speech, but be aware of phishing. As you can see, the border of our boards is full of locks and unlocks. So it basically means when our device is properly locked out and there is chance of not getting any unauthorized access into it, then our device is purely secured. But if our device is not properly locked out, so it is purely locked out, and you can see the locks are open that anybody, any hacker or any unauthorized access can steal the information and can morph it and edit it into a negative use. So I would like to conclude with the thing that any person of this country, if they are not cyberly secure or they are not making them secure or making their private information secure, I don't think so that in future they can advise anybody or can give suggestions to anybody for their security, because it takes 20 years to make a reputation or to build a character, but it takes 20 seconds of any cyber incident to realize. भारत का विकास तब तक संपूर्ण नहीं हो पाएगा जब तक हम साइबर सुरक्षित नहीं होंगे। यदि हमारा डाटा किसी और के पास है, निजी जानकारी किसी और के पास रहेगी,
तो उसका गलत इस्तेमाल जरूर करेगा अपने फ़ायदे के लिए। अंततः मैं यही कहूँगी, जैसे बच्चे हो गए उनको बचपन से सिखाना चाहिए कि वो कैसे सुरक्षित रह सकते हैं इन चीज़ों से। IT Act 2000 So we will look forward to definitely get knowledge about it. नया पास हुआ है, उसको पढ़िए थोड़ा सा। आप लोग अभी नए बच्चे हैं ना, तो इस पढ़ाई के साथ साथ उसको भी थोड़ा देखिए। नई सिक्योरिटी लॉ पास हुआ है अभी 21, अच्छा लगेगा। उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं। और आप लोग भी नए बच्चे हैं, तो आप लोग जैसे हम लोग पेरेंट्स फोन ले लिए चला रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स नहीं पता हर क्लिक करते जा रहे हैं। बच्चे से ज़्यादा असुरक्षित, अगर बच्चे शिक्षित रहेंगे वो क्लिक नहीं करेंगे। आप जैसे अब बड़ी है घर में, कितनी बहन भाई हो ये कितना, जैसे आप बड़ी होंगी, जैसे आप उसको बताएंगे, जैसे इतना आपने मुझे बताया, सबने सुना। आप छोटी बात को पता नहीं, इतना उसको नॉलेज तो होगा नहीं, ये छोटी चीज़ है। आप उसको बताओगे तो समझ जाएंगे। और आप अपने बच्चों को अपने साथी से या कोई किसी साथ कुछ ऐसा हो गया बताएंगे तो आगे बातों में वो फॉलो करें, तो जो भी सिक्योरिटी की बात हो रही है ये बच सकते हैं इससे। बहुत अच्छा हो जाती है सिक्योरिटी में 1 पॉइंट पर। अब सर जजमेंट चारों जगह दे एक काम बच्चे 8:30 दो सुपर रिप्रेजेंटिंग देवनगर वाले हो गया हो गया हो गया। सब बच्चे जीत गए। बस देखिए क्या होता है कि जैसे जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और कांस्य मेडल, और उसके बाद कोई मेडल नहीं मिलता। सर हमारे बच्चों को जीतना भी आता है, हारना केवल भी आता है। गोल्ड मेडल पाने वाले, सिल्वर पाने वाले, कांस्य पाने वाले और जो नहीं पाता, चौथे पर आता है, पाँचों पर आता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। सभी जानते हैं। बस उसमें अगर हम डिस्कशन नहीं करेंगे तो सब कैसे होता है। इसलिए गोल्ड बना हुआ कि जो जैसा बेस्ट हो उसको दिया जाए। बेस्ट है होगा हमारे हिसाब से मैम। यस मैम। और इसमें जो बच्चों ने इतनी मतलब ये लॉ की चीज़ें और इतना दूर चीज़ें जो इसमें चल रहा है, एक करंट टॉपिक है, उस बच्चों का इस जो है इस समय बहुत ज़्यादा बच्चे अवेयर और ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि बच्चों के पास पेरेंट्स पास देखिए हम लोग फ़ोन जो है ले लेते हैं, पापा से खोलिए तो ले लेते हैं। वो बच्चे अगर जानते रहें कि हमको गलत चीज़ नहीं क्लिक करना है, गलत फिशिंग आ रही है, कहीं कुछ आ रहा है नहीं करना, तो ये ज़्यादा बेटर है। बच्चों ने बहुत अच्छा बताया, एकदम नाइस जो है कि नंबर 2 कौन था? शिवाजी फिर टैगोर। हाँ, शिवाजी फिर टैगोर। नंबर 2 शिवाजी। बेटी क्या नाम है? टैगोर। गौरी। वेरी मतलब बहुत अच्छा पावर ऑफ एक्सप्रेशन, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और पावर एक्सप्रेशन जो कि नाइस। सर ये इन्हीं की बेटी। अच्छा अच्छा मैं कहने वाला था लेकिन मैं सोचा कि कैसे ठीक है। नहीं ओवरऑल बहुत रुको रुको रुको। Welcome you to this special occasion. We begin with honoring our mentor and inspiration, Pandit D.P. Mishra, in whose memory this institution was set up. Act which symbolizes the illumination of our minds and hearts with wisdom, knowledge, to seek enlightenment, truth, and kindness in all that we do. As we gather here today, let this light remind us of the importance of unity, peace,
and collective truth and kindness, enlightenment. Let it remind us of the collective strength we hold when we work together. May it guide us on our journey ahead, bringing clarity and positivity to our path, symbolizing the beginning of a new chapter filled with promise and light. It's an honor to have our honorable chief guest for today's evening. Naam to sune ho yo. Sir, Manager Ma'am, Principal Sir, the Principal Ma'am, excuse me, esteemed teachers, dear parents and my dear students. A very warm welcome to all of you on the occasion of this year's annual day event, second day, Fiesta 2024. I take this opportunity to welcome our students for their efforts. And now, I'd request our Honorable Manager Ma'am to present And I'd request our Honorable Principal Ma'am to present a bouquet as a token of reverence to our Honorable Chief Guest. And now, I'd request our respected manager, sir. Thank you, sir. We are very happy to have you here. Be it academics, sports, music, dance, drama, or other co-curricular activities. I take this opportunity to express our gratitude to all the Reverend Grace present here for gracing us with their presence, and to all the teachers and staff members for their thanks must be extended to the parents for their constant encouragement and for being our biggest supporters. Without you all, this event would not have been possible. Goodwill towards our school. First of all, I would want to pay homage to our lead director, Dr. N.K. Saxena, who left us last month. The show must go on. I can only say about sir that your presence is missed, but your memory treasured. We spend nearly 25% of our academic time in the pursuit of co-curricular and extracurricular activities. At present, there are around 20 activities for the students to choose from, outcome of which the guest will have an opportunity to see in our annual function. The students who have brought laurels in various extracurricular activities like painting, music, dance also deserve our compliments. Attitude towards the life. Hence, adequate emphasis is laid in encouraging the children to participate in the variety of games and sports in the school. The outcome is excellent. Rudran Shukla of class 6 got second position in the National CISC Karate Championship. Mayank Kumar got first position in the CISC National Carom Championship and unorganized. And we have been sending our teachers for various training programs, adding to their skills. I owe a lot to our devoted team of teachers, administrative staff, and the school rear guard who have always come forward willingly to assist in my endeavor to give the students under our care the best of attention. Each student is motivated at every step to improve further and to contribute collectively to the progress of the school. The teachers use a lot of time to plan their lessons. My sincere thanks to one and all of them for their dedicated hard work and influencing cooperation in making the school run so smoothly. We have been getting a great support and cooperation from all the management members, staff, parents and students. We extend our sincere thanks to all of them. I would like to emphasize that we continue
our challenging journey toward excellence in education and social cooperation and support from everyone for the same. Before I conclude, on behalf of the management, staff, students and my own behalf, I would like to profusely thank once again our most honorable guest for having so kindly accepted our invitation to be here with us to grace the occasion by their benign presence. Thank you. Thank you, ma'am, for giving us a glimpse of the glorious session that we've had till now. And now I'd like to call upon our Honorable Manager, sir, to come here and welcome our guests and give a brief introduction of them. हम अपनी तरफ से विद्यालय की तरफ से स्वागत और सम्मान करते हैं कि आपने अपना समय दिया, ये हमारे लिए आपने कृतज्ञ किया है। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष वार्षिक समारोह होता है और 2 दिन का होता है। एक दिन कल हो चुका छोटे बच्चों का, आज बड़े बच्चों का। छोटे बच्चों में हमने देखा अभिभावक ज़्यादा आते हैं, बड़े बच्चों में अभिभावक में जागृत कम होती है तो कम आते हैं, क्योंकि बड़े बच्चे उनको या तो बुलाते नहीं कहते हैं सर वो खुद अभिभावक बन जाते हैं या हाँ स्वयं बड़े बच्चों के अभिभावक कम आते हैं, जबकि हमको बड़े बच्चों के अभिभावक से ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो पेरेंट्स मीटिंग में कम आते हैं और उनसे कुछ कहने की तमन्ना होती है। देखिए, हमारा निवेदन सबसे पहले पेरेंट्स से, हम बाद में किसी का सम्मान या किसी का वो करें, सबसे पहले हम अभिभावक से निवेदन करना चाहते हैं कि देखिए, आज के समय में आप में जागृति बहुत कम है। बच्चे 8 घंटे विद्यालय में रहते हैं और 16 घंटे घर में रहते हैं। कृपया निवेदन है हमारा, हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों को मोबाइल पर बहुत कंट्रोल करिए। आप लोगों को बच्चों के हाथ में मोबाइल दे करके अपना काम करना है घर में, कि वो समय पास हो और हमारा काम चलता रहे, घर में डिस्टर्ब न करें। ये आपकी सोच बहुत दुखी कर रहा समाज में। आज के समय में जब हम लोग पढ़ते थे, इस चीज़ को आप ध्यान करिए, तो जब टीचर स्कूल में डांटता था या मारता था तो घर में नहीं बताते थे कि ऐसा न हो कि अभी घर में भी मार पड़ने लगे। और आज का अभिभावक अगर बच्चे को टीचर ने खड़ा कर दिया है तो वो लड़ने के लिए आ जाए कि हमारे लड़के के इंसल्ट क्यों कर दी, या अगर कहीं मारने के लिए तो प्रतिबंध ही लगा है कि मार न जाए, परंतु अगर कहीं टीचर ने एक थप्पड़ भी धर दिया और केवल इसलिए कि होमवर्क नहीं करके लाए, ये काम नहीं करके लाए, ये काम होमवर्क नहीं करके लाए, मैं आपको बताऊं, मेरा अपना अनुभव है कि जिन बच्चों का होमवर्क नहीं होता और टीचर से डरते हैं, तुरंत उनका स्टमक पेन चालू हो जाता है। वो क्लास में न जाना पड़े, स्टमक पेन है, स्टमक पेन, और जाकर के लेट जाएंगे जाकर के, और थोड़ी देर में स्कूल की तरफ से फोन जाए तो पेरेंट्स जैसे जानबूझकर तुरंत चले आएंगे लेने के लिए कि भेज दीजिए बच्चे को। अरे आप पूछिए भैया, हम तो पूछते हैं जनरली और टीचरों से भी कहते हैं पूछिए कि होमवर्क आप करके लाए हैं, हमको दिखला दीजिए, आपका स्टमक पेन, आप घर चले जाइए। 80% बच्चे, केवल बच्चों को आपने जो मोबाइल दे रखा है वो सबसे गलत कार्य है, उसमें आपको प्रतिबंध लगाना पड़ेगा और नहीं आप ही को भुगतना पड़ेगा। हम तो 4-5 साल के बाद इंटर करके चला जाए, परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे हाथ जोड़ करके विनती है कि जब 16 घंटे बच्चे घर पे रखते हैं, स्कूल में तो मोबाइल प्रतिबंधित है, स्कूल में तो मोबाइल नहीं लग, कोई ले भी आता तो उसका जमा करा दिया जाता है। और ये प्रतिबंध न केवल बच्चों के लिए, टीचरों के लिए भी है। टीचर भी स्कूल में मोबाइल नहीं रख सकते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप विद्यालय की मदद कैसे करेंगे। विद्यालय आपसे मदद मांग रहा है,
कि केवल इस बात का कि 16 घंटे आपके साथ में घर में रहता है, उसके लिए एक प्रतिबंध लगा दिए, आधा घंटे देख लीजिए, 20 मिनट देख लीजिए, 1 घंटा देख लीजिए, परंतु ये हर समय टीवी और मोबाइल होमवर्क नहीं हो पा रहा है। तो इन चीज़ों पर हम अभिभावक से सबसे पहले निवेदन कर रहे हैं कि इसमें हमको सहयोग करें और बच्चों के बनाने की दिशा में, क्योंकि टीचर 8 घंटे उनको देख पाएंगे, 8 घंटे में निर्माण नहीं कर पाएंगे, आप 16 घंटे साथ नहीं देंगे, तो बताइए इसमें टीचर और स्कूल का क्या दोष। और आप जरा से मार पड़ जाएगी तो आप लड़ने के लिए चले आएंगे, ऐसे कई अभिभावक। हालांकि इस विद्यालय में ऐसा कोई कारण नहीं हुआ, पर और विद्यालय में अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि पेशेंस नहीं है बिल्कुल पेरेंट्स को कि टीचर ने क्यों मारा, जाके हम पता तो करें कि क्यों मारा, किसकी गलती थी, क्या गलती थी, ये नहीं जाना, बस हमारे बच्चे की इंसल्ट कर दी। अरे इंसल्ट क्या होता है, स्टूडेंट लाइफ में क्या इंसल्ट होता है? आप काम नहीं करोगे तो डांटे तो जाओगे। अब आप घर में न डांटिए किसी काम में, तो स्कूल तो नहीं इस बात को देखेंगे, स्कूल तो काम चाहेगा। वर्क करें, अपना आराम से पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें, हमको स्वागत। बच्चे देखिए टॉपर हैं इसी विद्यालय के, आज डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जब कभी आते हैं पैर छूते तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, अपने आप में अभिमान लगता है कि देखिए हमारा बच्चा कितना ऊपर निकल गया। तो इन चीज़ों पर अगर पेरेंट्स साथ नहीं देंगे तो स्कूल क्या करेगा। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया इस मामले में सहयोग करें और विद्यार्थी को बनाने में आपका प्रथम हाथ है, विद्यालय का द्वितीय हाथ है। इसलिए सभी विद्यार्थी जब जागृत नहीं है, जब अगर कहा जाए कि अगर पेरेंट्स मीटिंग में बच्चे नहीं आ रहे हैं, आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, तो उसमें पेरेंट्स को तकलीफ। भाई आप स्कूल से संबंध नहीं रखें, बच्चों को एडमिशन कराने आ गए और पेरेंट्स मीटिंग जब होती तो आप आते नहीं, तो बताइए टीचर किससे शिकायत करे बच्चे की? टीचर का काम तो है आपको बच्चे के विषय में पूरी जानकारी दे, और आप जानकारी लेना नहीं चाहते तो आप साल भर क्या कोई घोल करके पिला देगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग जगें और इस मामले में विशेष रूप से ध्यान दें कि बच्चों को टीवी और मोबाइल पर विशेष ध्यान रखें कि हर समय तो ऐसा नहीं है कि आपसे छिप कर के वो मोबाइल देख रहा है। तो इसलिए हमारा आपसे दूसरी चीज़, आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि जी आए, हम लोगों को अभी 2 शब्द से संबोधित करेंगे और उससे हम लोगों को एक मार्ग मिलेगा, रास्ता मिलेगा। हम इन शब्दों के साथ अपनी बात को ध्यान देते हैं और आशा करते हैं कि बच्चों का प्रोग्राम के बीच में ज़्यादा ना करें। आपके बीच में ये भी जानकारी दे दें, कानपुर के एक हास्य माने उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं अन्नू अवस्थी जी, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा उनका। अभी आपके बीच में मंच में वो भी 2 शब्द रखेंगे और हंसाने का ही उनका विशेष वो है। आप फेसबुक मोबाइल वगैरह में अक्सर देखते होंगे अन्नू अवस्थी को, तो आज वो आपके सामने ही आकर के अपने हास्य व्यंग की कुछ सुनाएंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. I request our honorable chief guest, sir, Mr. Shesh Bahadur, to please come here and say a few words. He is from a field which the common people are less acquainted with, so I'd love to have something from him, sir. Thank you. सर्वप्रथम मैं अपने बड़े भाई को वो सद्भाव देता हूँ कि वो हमें यहाँ आने के लिए मौका दिए और मेरा इतना सम्मान इस स्कूल से आते ही मिला, इसके लिए बहुत ही मैं आभारी हूँ। देखिए, ये जो वार्षिक प्रोग्राम अब बच्चों का चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? हमारे सभी पेरेंट्स
बच्चों के बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। जैसे मैनेजर साहब अभी कहा कि 8 घंटे बच्चे हमारे पास रहते हैं और 16 घंटे आप लोगों के पास रहते हैं। और मैनेजर साहब ने भी बताया कि पहले के पेरेंट्स की दायित्व है, ड्यूटी है, कर्तव्य है, वह अपने बच्चों का जो संस्कार है उसको बनाए रखें। जैसे आजकल देखिए कि एकल परिवार हो रहा है। एकल परिवार मतलब कि पत्नी और उसके बच्चे, 2 बच्चे जो भी हैं, और जो दादा दादी हैं या बुआ हैं, जो भी जितने रिलेटिव्स हैं, वो कोई आज के बच्चे अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। और उस बच्चे का जो विकास है कैसे होगा? आज के देखिए पेरेंट्स में बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, सभी हैं, सब पास एंड्रॉयड फ़ोन है, मम्मी पास अलग फ़ोन है, पापा पास अलग है, यहाँ पे बच्चे 8वीं पास, उनके पास भी अलग है। ये सबके घर में लगभग में हो गया है कि एक साथ सभी बैठते नहीं हैं। ये बहुत गिरावट आ गई है, सब अपने अपने फोन लगे रहते हैं। जब आप अपने बच्चों को समय नहीं देंगे, देखिए बच्चों के साथ इमोशनली, फिजिकली दोनों अटैचमेंट होना होगा। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। फिजिकली कैसे अटैचमेंट होंगे? फिजिकली में जैसे भी कहें कि बच्चे, जैसे अभी हम चर्चा ही हो रही थी, हमारे बड़े भाई अभी घर थे, हम लोग बचपन, अब पहले फ़ोन तो था नहीं, तो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी। अभी एक रिसर्च हुआ चाइना में कि जो फ़ोन कि कितना घातक हो गया है। कैसे घातक हो गया है कि जो इसकी स्क्रीन है उस पर एक बहुत बड़ा रिसर्च आया है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में इससे काफ़ी हानि होगी बच्चों की। बच्चे नहीं, जितने अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े से बड़े बुढ़े से लेकर बच्चे तक सब इसके आदी हो गए हैं। तो इसलिए इसको हमें ध्यान देना है। और बच्चों को तो बच्चे क्या हैं, जैसे हम सिखाएंगे वैसे होंगे। पहली सभी जानते हैं कि पहला शिक्षक कौन होता है? माता और पिता। और जिसमें माता का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि माता जो है, देखें, रही बात की जैसे कि हमें पता चला कि इसमें अपने लगभग 70-75 की स्टाफ हैं, टीचर बहुत अच्छे हैं। इसमें कितने टीचर? 60 टीचर्स हैं। बहुत इससे ही लगता है कि काफ़ी स्कूल समृद्ध है। देखिए, हम लोग भी पढ़े हैं, हम यहाँ इस पोस्ट पर पहुँचे हुए हैं। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, ये बच्चों के लिए है कि आप लोगों को बहुत सुविधा मिल रही है। जब हम लोग थे तो हम लोग इतना सुविधा नहीं थी। मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। क्लास 1 से लेकर 3 तक हमारे स्कूल में छत नहीं थी। प्राइमरी स्कूल था, उसमें छत नहीं थी। बरसात में जैसे पानी बरसता था, छुट्टी हो जाती थी। और छुट्टी होने के बाद तुरंत जो अगल बगल घर रहते उसमें लोग घुस जाते थे सीधा। और जो सीधी बात है, इतने बच्चे किसी घर में घुसे तो उसको डांट तो पड़नी है। तो जैसे होता क्या था कि जो आप लोग जो हैं शहर का हैं, शहर के हैं, वहाँ जहाँ पशु बांधे जाते, पशु जानते, पशु उसको क्या बोलते हैं सर? असवार बोलते हैं इसको। मैं भी बोल रहा हूँ, यहाँ भाड़ा बोलते हैं, गाँव असवार बोलते हैं। हम लोग वहाँ छुप जाते थे ताकि मतलब उनके से डर, मतलब कि डांट न खाना पड़े। तो लेकिन अब देखिए, अगर मैं वहाँ से पढ़कर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ,
मेरा बताने का केवल एक ही पर्पज़ था ये नए बच्चों के लिए कि सॉरी घर से हो तो कर लीजिए बात। बच्चों को बताने मेरा यही एक पर्पज़ था कि देखिए कोई भी सुविधा और असुविधा ये हम आपको रोक नहीं सकती है। विल पावर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विल पावर और अपना लक्ष्य। मैं अपनी बात बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। बच्चों के लिए मैं बच्चों को मोटिवेट करना आया हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि इनको बताना। देखिए कोई भी बच्चा, इसमें जितने बच्चे हैं ये जरूर नहीं है कि सब अधिकारी बने, जज बने, कोई IAS बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। सबकी अपनी अपनी सोच है हमें क्या बनना है और बन जाएगा 100%। कोई बच्चा अगर चाहे मुझे जज बनना है वो जज बन जाएगा, लेकिन उसे करना क्या पड़ेगा? कोई पेरेंट्स चाह रहा कि मेरा बच्चा IAS बने, जज बने, IPS बने, उस पेरेंट्स क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सोच पहले रखनी पड़ेगी। यहाँ से उस सोच को पहले यहाँ से आएगा कि हमारे बच्चों की बनाना है। बच्चे सोचना पड़ेगा मुझे बनना है। तो उस सोच को बढ़ाने के लिए, उस पद को पाने के लिए, उस स्थान को पहुँचने के लिए जो जो बाधाएं हैं, जो जो सोच करना है वो करना पड़ेगा। वो जो कंडीशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उतना कार्य करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी बच्चों को 12वीं पास करना है तो पहले क्लास 1 पास करना पड़ेगा, क्लास 2 3 आगे तक 12वीं तक चले जाएगा। लॉ जज बनना है LLB करना पड़ेगा। LLB करने के बाद तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी करने के बाद कंपटीशन देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप उस पोस्ट लिए चयनित होंगे। अच्छा, और उसमें चयनित होने के लिए कैसे तैयारी करने पड़े, कितना कठिन है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं, कोई चीज़ सरल नहीं है। इतनी जनसंख्या है और छोटी सी पोस्ट, थोड़ी सी पोस्ट आती है। तो इसलिए आप बच्चों को, जितने बच्चे हैं अभी से अपना लक्ष्य बना लें, हमें करना क्या है। और अपने पेरेंट्स भी यही है, वो अपने लक्ष्य बना लें, अपने बच्चों बनाना क्या है। वैसे ही जैसे आप सोचोगे वैसे बन जाओगे। ये नेचुरल है। उसका उदाहरण मैं खुद का हूँ। हमारे साथ के बहुत सारे बच्चे थे, सब कह रहे हैं B.Ed कर लीजिए, आप तुरंत मास्टर बन जाएंगे प्राइमरी के। सभी सलाह देते हैं। सलाह सबकी माननी जरूर नहीं है, सलाह सबकी मान लिया जाए। जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। मैंने जीवन में B.Ed का फॉर्म नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? मुझे प्राइमरी मास्टर नहीं बनना है। मुझे जो बनना है मुझे बन के रहना है। मैं आपको भी बता दूं, मैं ये बड़प्पन होगा अपने मुंह से बताना, सर जानते हैं मैं सिविल जज की पोस्ट को मैं छोड़ चुका। किस लिए? HGS बनने के लिए। मतलब सिविल जज की पोस्ट को मैंने कंपटीशन पास करके उसको छोड़ा। एक किस लिए कि मुझे डायरेक्ट HGS बनना है और अपने यूपी नौकरी करना है, दिल्ली में। मैं दिल्ली में था उसके पहले। तो कई हमारे मित्रों ने कहा कि इतनी बड़ी पोस्ट का आप पार करके किसी को मिलती नहीं है, आप छोड़ दे रहे हैं। जज तो जज कहीं रहे। मेरा बिहार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। आप ज्वाइन कर लीजिए। होता नहीं। फिर मेरा काम मन का मैंने ज्वाइन किया। फिर मेरी आत्मा नहीं, हम ज्वाइन नहीं करेंगे, मैं तैयारी करूँगा, मैं इस पद को लूँगा।
मैंने 2 एचजीएस क्वालिफाई किया, 1 एचजीएस फिर झारखंड में रहा, फिर वहाँ भी मैंने नहीं ज्वाइन किया, फिर यहाँ हमारे यूपी में हुआ तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। इतना बताने का मेरा मकसद केवल इतनी है कि जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा, जो चाहेंगे वो मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। केवल उसके लिए करना क्या है, अपना मन लगन तन मन से आपको उस पर लग जाना है बस। कोई चीज़ दुनिया में असंभव नहीं है। ये जो बच्चे हैं वो टीचर को पढ़ाते हैं, ऐसा है कि नहीं? जो हमारे टीचर हैं इसमें टीचर किधर बैठे हैं? इधर। हमेशा आप ध्यान रखें, कुछ टीचर लिए मैं बताना चाहूँगा, टीचर के लिए मतलब कि अपने नहीं मानना चाहिए, जो मैं अपना समझता हूँ, अपने खुद स्टूडेंट मानना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर आप अपने किसी स्टूडेंट समझे, आपके मन में कैसे आया है, क्यों पूछा आपने? उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ थी जिनको रिलेट कर पाना टू मॉनसून वाज डिफ़िकल्ट, तो इस वजह से मैंने उसे समझने की कोशिश की। जो टीचर ने पहले पढ़ा रखा था इसको, उसके पहले पूछा था, बाद में पूछा था? गुड। देखिए, ठीक है, बच्चा कभी मुझे मिलेगा और कहेगा कि सर ने आपने जो बातें बताया मैं थोड़ा सा 1% भी मैंने फॉलो किया, और कभी ये भी सुनने को और अच्छा लगेगा जब वो कहा कि आपकी बात को सुन करके मैंने ये सफलता प्राप्त कर ली। थैंक यू, मैं बहुत थैंक यू आप लोगों को। बहुत कुछ सिखाया आपने। अभी हमारी काबिलियत है कि हम आपसे कितना सीख ले जाते हैं। Moving on to the prize distribution ceremony, today we recognize 5A. Sir, center please. Yes. Inter-house drawing, Anjali class 8B. Sharad Singh class 9B in junior category for inter-house drawing competition. थोड़ा पास आ जाइए आप, मैम आगे आ जाइए, मैम थोड़ा आगे आ जाइएगा आप। Ghazal Nanda class 12 science. Inter-house Sudoku, Arohi Yagik class 8A. Inter-house Mehndi competition, Shivanshi Soni first prize in junior category. And Aparna Avasthi in senior category from class 11 science. Interclass Hindi storytelling, Anuj Yadav from class 5A. Pihu Kumari, interclass storytelling competition from class 5B. Srishti Singh, inter-house solo dance competition, first prize from junior category. Yashi Yadav from senior category for inter-house solo dance competition.
Avasti, first prize for Inter-House Hindi Creative Writing Competition. And Aditya Singh Chauhan from Junior category for Inter-House Hindi Creative Writing Competition. Inter-House English Declamation, Gauri Mishra from Junior category. And Aditi Agnihotri from Senior category for English Declamation. Inter-House Solo Song Competition, Aradhya Avasti first position from Junior category. And Astha Avasti for the same competition, that is Inter-House Solo Song from Senior category. Inter-House Crossword Competition, Umang Tiwari from 8B won the first position. For Inter-House English Debate, Aditya Singh Chauhan from Junior category for the motion. And Geet from Junior category against the motion. Inter-House English Debate Senior category, Aparna Avasti for the motion. And Atharv Mishra from Senior category against the motion. सर अभी जादू दिखाएगा भी थोड़ा. Inter-House Hindi Debate, Avika Tiwari Sub Junior category for the motion. And Mayank Kumar against the motion. From the Junior category, Naman Singh for the motion. And Kritagya Singh against the motion. For the Inter-House Hindi Debate Senior category, Divya Mishra for the motion. Divya Mishra for the motion and Pragya Singh against the motion. For inter-class Hindi writing competition, Shivanya Soni class 5A. First position. And Arushi Yadav for Inter-House Hindi Writing Competition. Shivanya won in the class category and Arushi in the Inter-House category. For inter-class English writing, Arya Singh class 5A.
Rudra Pratap for inter-class spell bee competition, class 5B. And Rishina Singh, inter-class fancy dress competition. For inter-house group song competition, in the junior category, Ashoka House won, and on their behalf, Kavya Kumari will take the prizes for the whole group. Kavya Kumari. Their group from सर अभी आपने जजमेंट किया था अशोका हाउस का, ये अशोका हाउस के ही हैं और इनको फर्स्ट पोजीशन मिला है इंटर हाउस ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन में. And Ayushi Kushwaha from Tagore House won in the inter-house group song competition in the senior category. In the inter-house group dance competition junior category, Tagore House won and Gauri Mishra will collect the prize on the behalf of the whole group. And for inter-house group dance competition senior category, Avika Vajpayee from Tagore House will collect the prize. For inter-house Rangoli competition, Raman House won the first position and Aparna Vasti will collect the prize on behalf of the whole group. And now, in the ISC National Carom Tournament, Mayank Kumar from our school won the first position in the National Carom Tournament organized by the ICSC and ISC schools. Anjali won the regional level competition. She represented UP Uttarakhand for the inter-school, in fact inter-regional drawing. And moving to our ICSC and ISC performers, Aditi Kushwaha, who is at present in Divya Mishra, the second topper, at present he is in 11th Commerce, and the third one, Nisha Meena. And now the last one, the best house bulletin board trophy. On the stage, house master and house captain Ashoka House. May I have Mrs. Jyoti Sahu over here? Ashoka House, where are you? उनको सर अभी पता नहीं है, सरप्राइज है. शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. नहीं हरी Ashoka House students, if anybody is here, yes, please. Ashoka House teachers, if anybody is sitting here, quick, very quick. Hurry up, hurry up, hurry up. They are so happy. Sir. Wait. सामने देखिए सर.
Thank you, sir. Thank you. So, sir has given us the permission to begin with the cultural program, and I'd request our dignitary